Hello students. So finally we have reached to the last part of our chapter, that is political parties, and this is the last video which is covering the last portion, and we have covered already the two parts of this second last topic, that is what are the various steps taken by the various agencies of India to reform the political parties. And now we are moving to this third part. This is part 3, the steps taken by the Election Commission to keep a check on political parties and their malpractices so that some reforms can be brought. So first one, the very important one, is the Model Code of Conduct. So this Model Code of Conduct was passed with the consent of all the political parties. And now this election commission ensures that all the political parties follow this Model Code of Conduct. You must remember in your class 9th you have already gone through this concept of Model Code of Conduct. In this Model Code of Conduct, what the election commission ensures that during the time of election, whatever are the moral duties, moral restrictions for all the political parties to follow, they should be followed in a proper manner. Like all the political parties, they will have not to use the religion or casteism in their rallies, in their speeches to woo the voter, to attract the voter. Then every political party will have to follow the certain rules made by the election commission during the time of election campaigning, like the timing कि कब उनको प्रचार करना है, कितना प्रचार करना है, इलेक्शन खत्म होने के 2 days बिफोर और 48 आवर्स बिफोर उनको अपना कैंपेनिंग बंद करना है, रिलीजन या कास्ट का सहारा नहीं लेना, बाकी जो हम इलेक्शंस के अंदर कैंपेनिंग में प्रॉब्लम्स देखते हैं उनसे दूर रखना है. और मेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी इंश्योर करता है इलेक्शन कमीशन की गवर्नमेंट मशीनरी का रूलिंग पार्टी मिसयूज ना करे. सो ऑल दीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी कैंडिडेट एंड देयर पार्टी. दैट इज एंश्योर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स equal battleground for all political parties to function. Then the second one, the problem we have discussed related to the internal democracy of these political parties. So election commission also ensures that the organizational meetings of political parties, their function, internal functions, their internal elections should be held on regular basis. That can promote the internal democracy within the political party. And then the last one, election commission also directs these political parties to file their income tax return. So income tax return should be filed annually by all the political parties. That is the third thing which is ensured by election commission for effective political parties functions. So these are the steps which have been taken by election commission. And we have already done the steps taken by the parliament as well as the Supreme Court. और इसी के साथ आपका वो पोर्शन खत्म हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज की वीकनेस को दूर करने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा चुके हैं. दीज आर द स्टेप्स विच हैव ऑलरेडी बीन टेकन. नाउ लास्ट वन, द लास्ट पैराग्राफ ऑन योर लास्ट पेज, द राइट हैंड साइड पोर्शन कवर्स द सजेशंस कि व्हाट कैन बी द सजेशंस from your side or from active aware political people's sides to reform the political parties. कौन कौन से सुझाव ऐसे हो सकते हैं जो हम फर्दर एड ऑन कर सकते हैं. आज हमारे सजेशन, कल का जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है. तो कौन कौन से सजेशन है आपकी बुक में? 3 सजेशंस हैव बीन गिवन. हम इसको 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं और आप चाहे तो अपनी आप भी कुछ सोच के उसमें एड ऑन कर सकते हैं. So first important suggestion has been given is the state funding of election. ये suggestion बहुत पुराना है कि whatever is being expended during the time of election, that should be funded by the state, by the government.
कि गवर्नमेंट जो है, जो भी इलेक्शन में खर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, वो सब गवर्नमेंट ऑन करे। और आपकी बुक में मेंशन है कि गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल जो गाड़ियों में लगता है, इन द फॉर्म ऑफ पैम्पलेट्स जो खर्च होता है कैंडिडेट का या पॉलिटिकल पार्टीज का, या जो उनके प्रचार के लिए खर्च होता है पैसा, दैट शुड बी ऑन, दैट शुड बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। सो दैट इज कॉल्ड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। अब क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि स्टेट क्यों खर्च करे, जब जिसको इलेक्शन लड़ना है तो वो अपनी जेब से अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करे, ये तो हमारे ऊपर, हम टैक्स के रूप में और ज्यादा पैसा हमारे ऊपर लगेगा, और हम क्यों इनके खर्चों को हम क्यों बियर करें। तो किसी भी इफेक्टिव डेमोक्रेसी के लिए अच्छे ऑनेस्ट कैंडिडेट का आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज करप्ट पीपल विल कम। अगर इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव देन ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड इट, only criminals with having black money can afford it, and the common people but honest one, they will always keep themselves away from this party politics. So state funding of election in a way can motivate these people who really want to reform the society, who want to do something good for their country. They can come in politics, और वो इसीलिए रुकते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। So one suggestion is that। और फिर इससे क्या होगा, जो ब्लैक मनी खर्च होता है, जो ओवर एक्सपेंसिव आपका इलेक्शन बजट बना हुआ है, जिसमें सिर्फ रिच पीपल पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके कंपैरेटिवली कॉमन पीपल भी उसमें आ सकता है, एंड दैट विल गिव अ रियल शेप टू आवर डेमोक्रेसी। सो दिस इज द फर्स्ट सजेशन, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। सेकेंड वन इज दिस, रिजर्वेशन ऑफ विमेन। तो ये तो बिल्कुल इजी है आपके लिए कि दिस इज ऑल्सो द सजेशन ऑलरेडी वी हैव डन इन चैप्टर 2 फेडरलिज्म, कि 1/3 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वीमेन फॉर ऑल द पोस्ट एट लोकल लेवल। नाउ टाइम हैज कम व्हेन दिस रिजर्वेशन फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड एट द स्टेट लेवल इन स्टेट विधानसभा as well as at central level in the parliament. In the parliament and state assemblies, at least 1/3 seats should be reserved for women, so that they can also get involved. So this is your second suggestion. Third one is the regular internal elections. In spite of election commission's guidelines also, internal elections of these political parties, they are not हेल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, और अगर वो होते भी हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। एक्चुअल में पता होता है कि पार्टी की जो पोस्ट है वो कहां जा रही है, खासकर उसकी प्रेसिडेंशियल पोस्ट। तो इलेक्शन कमीशन शुड मोर इफेक्टिवली लुक इनटू दिस मैटर, कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरनल इलेक्शन भी करवाए, रेगुलर बेसिस पे भी करवाए, और उसमें कोई पार्शियलिटी ना हो, सबको इक्वल चांसेस मिले। देन द राइट टू रिकॉल, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाला थर्ड पॉइंट, एंड दिस फोर्थ पॉइंट, ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। एक सजेशन है राइट टू रिकॉल का, ये कई बार इसकी आवाज उठती रहती है कि राइट टू रिकॉल का जो राइट है वो पीपल को मिलना चाहिए। अब व्हाट इज दिस राइट टू रिकॉल? ये कहता है कि अगर हमने सपोज किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, एमएलए को या एमपी को चुना, तो वो 5 साल के लिए चुना गया, जब तक कि अगला इलेक्शन नहीं होता, नेक्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं होते। तो ये एमपीज और एमएलए या तो इलेक्शन से पहले नजर आते हैं, या जब इलेक्शन होने वाले हों ये फिर तब निकल आते हैं। जैसे बरसात में मेंढक निकल आते हैं, तो ये भी हमें या तो इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे ही नजर आएंगे, या तो इलेक्शन होने वाले हैं, या फिर इलेक्शन का जो कैंपेनिंग है वो चल रही है, ये तभी हमें नजर आते हैं। तो अगर ये पावर लोगों को दे दी जाए कि कोई एमएलए या एमपी किसी भी एरिया का, और उस एरिया के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग सेटिस्फाइड नहीं है उसकी फंक्शनिंग से, तो वो एक वोटिंग के थ्रू अपने उस एमएलए और एमपी को वापिस बुला लें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइट टू रिकॉल। अगर हमें हमारे एरिया में लगता है कि ये एमएलए तो इलेक्शन से पहले इतने प्रोमिस कर रहा था और अब तो हमें नजर नहीं आ रहा, और फिर एक ऐसा प्रोसीजर बना दिया जाए कि उस एरिया के लोग डिसाइड करें कि हमें तो 2 साल के बाद ही अपने एमएलए चेंज करना है या एमपी चेंज करना है, तो दे शुड हैव द पावर टू डू सो, एंड दिस पावर इज कॉल्ड राइट टू रिकॉल। You can understand
इट्स वैल्यू ऑल्सो। और आज का सजेशन मैंने आपको बताया कि कल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो सकता है। जैसे हमने नोटा के बारे में सुना कि नोटा को लेकर डिमांड होती थी, NOTA, और आपने इसका नेम जरूर सुना होगा, नोटा, नन ऑफ द अबव। तो ये मीनिंग है नोटा का। ये भी पहले इसकी डिमांड थी कि भाई सारे जितने भी कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसमें एक नाम ये भी होना चाहिए, नोटा। अगर लोगों को लगता है कि जितने भी कैंडिडेट्स उस एरिया से खड़े हैं उनमें से उनको कोई भी पसंद नहीं है तो वो इस बटन को भी दबा दें। तो ये फिर 2013 के बाद इसको, इस आइडिया को अप्लाई किया गया। और आज जो है, चाहे वो MLAs के इलेक्शन हो या MP के इलेक्शन हो, हर जगह ये जो चॉइस है ये वोटर्स को प्रोवाइड की गई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि हमारी आज की जो डिमांड्स हैं या हमारे आज के जो सजेशन है कल को वो अप्लाई हो सकते हैं। तो दिस इज राइट टू रिकॉल। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो आपको ये दिया हुआ है, स्टेट फंडिंग, रिजर्वेशन ऑफ वीमेन एंड रोल ऑफ पीपल। So role of people is the most important one, undoubtedly. If the people are aware, if they are alert and aware, they can calculate that what is going on, what is the political situation of their country, then they will not come under any trap made by these political parties. तो फिर वो ना तो पैसे के लालच में आएंगे, ना क्रिमिनल से डरेंगे, ना कास्टिज्म के चक्कर में पड़ेंगे, ना कम्युनिज्म के, रिलीजन के चक्कर में पड़ेंगे। और वो वोटर, बीइंग अ वोटर, दे विल चूज ओनली टू दोज कैंडिडेट्स जिनको वो समझते हैं कि वो उनके लिए कुछ काम करेंगे। सो रोल ऑफ पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। If people are aware, then the government representatives all will automatically be aware कि अगर हमने काम अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हमारे को चांस नहीं मिलेगा। So this is the very important one. So in this way we have covered all these points. One more point I had mentioned here, RTI, right to information। तो right to information के अंडर में हमें पता है कि ये right हमें 2005 के बाद दे दिया गया कि अगर आपको कुछ भी पता करना है गवर्नमेंट फंक्शनिंग के बारे में तो आप RTI लगा के, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं गवर्नमेंट से। सो वन मोर सजेशन कॉन्स्टेंटली बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दैट दीज पॉलिटिकल पार्टीज शुड कम अंडर RTI। इनको भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर में आना चाहिए। और अगर किसी भी पार्टी से कुछ भी पूछना है, किसी भी पब्लिक ने, इंडियन सिटीजन ने, तो वो एक RTI फाइल करे और पूछ ले कि भाई आपको डोनेशन, इस वाले इंडस्ट्रियल हाउस ने कितना डोनेशन दिया, आपका एजेंट, आपने किस तरीके से, किस प्रोसीजर से अपने इंटरनल इलेक्शन करवाए, तो वो सारा कुछ उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज कम अंडर RTI। और यहां पे फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी इंटेलिजेंट है कि इस मामले में सारी एकजुट हो जाती हैं, कोई ओपोजिशन नहीं, कोई रूलिंग पार्टी नहीं, और वो इसको सिंपली डिनाई करती हैं कि वी विल नॉट कम अंडर RTI। तो दिस इज द अनदर सजेशन यू कैन सिंपली मेंशन कि वन सजेशन इज दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड कम अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड दे शुड ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शनिंग एंड अबाउट whatsoever or whosoever is running the party about that thing. So that is also a very important, very good suggestion to reform these political parties. So now we have covered the entire chapter. I hope you have understood each and everything.